بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ اور ہم کو دین کی مذاکرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ دین کی گفتگو کرنے کے لیے اللہ نے آپ اور ہم کو جمع کی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، دین کیا چیز ہے، لفظ دین کیا ہے، اور دین کے لیے اللہ رب العالمین تبارک و تعالیٰ نے زمانہ بہ زمانہ اللہ نے نبی کو بھیجے ہیں، اور بطریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دے کے زمین کے اندر بھیجے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین لے کے اپنے صحابہ کو دین سکھائے ہیں، اور صحابہ بھی دین کی محنت کو لے کے جگہ بہ جگہ اپنا قبر بنائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین کی فکر کی ہے۔ تو دین کیا ہے؟ دین جو ہے خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کا نام نہیں، بلکہ دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ دین تو آپ اور ہم کو پتہ ہونی چاہیے کہ دین آپ کے اندر اور ہمارے کے اندر کتنا تک باقی ہے اور کتنا تک نہیں۔ آپ اور ہم دیندار ہے یا نہیں، آپ اور ہمارے اندر دین ہے یا نہیں، آپ اور ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ لیکن دین کی جو صفات ہیں وہ صفات آپ کے اندر ہمارے اندر نہ ہو تو آپ اور ہم کیسے دیندار ہو سکتے ہیں میرے پیارے ناظرین و سامعین؟ تو اللہ جل جلال وعم نوال جو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ آپ اور ہم کو دین کی مذاکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ سب سے پہلے بتلائی گئی دین جو ہے یہ خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ دین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے کسی مخلوق کو تکلیف نہیں ہوئی ہے، اپنے صحاباؤں کے ذریعے سے بھی نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو مکمل دین دے کے دنیا کے اندر بھیجے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی بالکل قرآن جیسے تھے، یعنی قرآن کو جس طریقے سے قرآن کے اندر بیان فرمائی گئی وہی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے جیسے ہیں، وہی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ آپ اور ہم اگر قرآن کے مطابق چلیں گے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے تو آپ اور ہمارے اندر بھی دین آ جائیں گے۔ یعنی دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ آپ اور ہم کیسے خیر خواہی کرے، کیا خیر خواہی کرے، کیا نہ کرے؟ جیسے کہ مخلوقات جو ہوں گے وہی مخلوق جو ہے آپ اور ہم تکلیف جیسے پہنچاتے ہیں۔ کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں؟ اگر بیل کو ذبح کرنا ہے تو آپ اور ہم ذبح کرتے ہیں، اور بیل کیا کرتا ہے؟ تڑپتا رہتا ہے۔ مرغی کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو بھی تڑپتا رہتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے اندر یہ دین یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم آپ اور ہمارے ذریعے سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو، بلکہ اس کو اس طریقے سے ذبح کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی تکلیف ہی نہ پہنچے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے کاٹا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگ، ساتھیوں، محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ ساتھی ان تمام چیزوں کو غور و سماعت فرمائیں گے، اور جو ہے اپنے آپ کے ذریعے سے کسی ساتھی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ اگر آپ مسجد کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ کا کوئی چپل کوئی ساتھی لے کے گیا وضو کرنے کے لیے، تو میرے پیارے بھائی آپ اور ہم جو ہے غصہ نہ کرے۔ آپ ہم دیکھنے کے بعد یہ سوچے، یہی سمجھے کہ نہیں، میرا ایک مومن بھائی نے میرا چپل کو لے کے گیا، اور جو وہ بندہ لے کے گیا جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اللہ جس سے پسند فرماتا ہے، انہی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، وہی کو مسجد کے اندر لانے کی توفیق دیتے ہیں۔
तो बंदा मस्जिद के अंदर आए नमाज सलात अदा करने के लिए, तो सलात को अदा करना गोया कि अल्लाह सलात के मकसद क्या होता है कि यही होता है, हम कहते हैं ना कि नमाज के जब खड़े होते हैं कि दूसरे दुनियावी कोई फिक्र आ जाए तो हम यही सोचेंगे हम अल्लाह को देख रहे या तो अल्लाह हमें देख रहे। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, वो तो अल्लाह के साथ दीदार के लिए मस्जिद के अंदर आए हैं, या तो अल्लाह तो उसको खुद देख रहा है और अब कुछ किन बंदों को अल्लाह देखेंगे, वही बंदा जो नमाज के लिए आए हैं मस्जिद के अंदर तो अल्लाह का महबूब बंदा है, तो लेके गया, दूसरे किसी ने नहीं लेके गया। अब बल्कि ये अगर फिक्र ना हो तब ये सोचिए कम अज कम ये तो फिक्र होनी चाहिए कि कम अज कम अल्लाह के कोई एक नया लिया, वो तो बंदा लिया जो बंदा मेरे महबूब की क्या है उम्मती है, तो इसको क्या करे माफ़ कर दे, इसकी गलती को उसको जो है आपके अंदर कोई दूसरा फिक्र ना लाए, उससे गुस्सा ना कर उसको माफ़ कर दे। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और साथियों दीन तो खैरखाही का नाम होता है, यही है खैरखाही। और आप रास्ते से चल जाते हैं, किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाया बस उसको फौरान माफ़ करना है। यही सोचिए अगर मेरे प्यारे भाई अगर मुझे क्या करता तकलीफ पहुंचाता हम उससे फौरान माफ़ कर देते, यही है खैरखाही, यही है दीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक जगह से दूसरी जगह चले जाते लोग उस अल्लाह के नबी को पत्थर मारते, अल्लाह के नबी के बदन मुबारक पर क्या करते लोर से पूरे बदन को भरा देते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के बदन मुबारक पर थू फेंका करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के तकलीफें दिया करते थे। लेकिन मेरे प्यारे महबूबों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दूसरे पर किसी तरीके से उन लोगों को गाली नहीं दिया था, उन लोगों पर गुस्सा नहीं करता था। मेरे महबूब के कैसे अखलाक करीमाना है, कैसे मुहसीन अखलाक है, कैसे हसीन अखलाक है। मेरा महबूब फरमाता है और हमको तो मालूम है, आप हमको कैसे मालूम करें, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को उठाइए, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के साथ आपकी ज़िंदगी को मिलाइए कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की जो सिफ़ात है वो सिफ़ात आपके अंदर है या नहीं। अगर वो सिफ़ात आपके अंदर है तो गोया कि आप मान लीजिए मैं दीनदार हूँ, वही दीन है, मेरे अंदर दीन मौजूद है। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जो मखलूक हुआ करता है उन मखलूक को भी आपकी तरफ से खैरखाही पहुँचनी चाहिए। जैसे कि छोटे छोटे च्यूटियाँ हुआ करते हैं, आप दस्तरखान के अंदर खाना खा लिए, खाने के बाद दस्तरखान कैसे उठाना है, यही के अंदर खैरखाही क्या है कि दस्तरखान उठाने के बाद जो छोटे छोटे दाना गिरा हुआ रहता है वो आप क्या करें, आप दूसरे मखलूक के फिक्र करें, दूसरे मखलूक के एहसान करें, दूसरे मखलूक की भलाई के लिए वो दाना क्या करे उसी जगह के अंदर रख दे ताकि परिंदा आके वो चुन सके, उसे नोच करके खा सके। और जो छोटी छोटी गिरा हुआ दाना रहता है वो दाना आप क्या करे चींटी के जो गाद होता है उस गाद के अंदर गिरा दीजिए ताकि चींटी उससे फायदा हासिल करे। यही है दीन मेरे प्यारे भाई, यही है खैरखाही। आप और हम क्या करते हैं उसको लेके दूसरी जगह के अंदर फेंक देते। आप और हम अपने घर में मछली खाए, आम खाए और दूसरे फल खाए, खाने के बाद आप और हमको क्या करनी चाहिए, आप आमिर है, आप गनी आदमी है, आप खा लिए है और आपके पड़ोसी अमीर नहीं, वो गनी नहीं, वो कैसे खाएं। अगर आप उसको क्या करें जमा करके एक जगह के अंदर फेंक दिए और वो देख लिया, उसके छोटे छोटे बच्चे देख लिए, वो क्या करेंगे अपने अब्बा जान से रोया करेंगे, अम्मा जान से रोया करेंगे कि अम्मा मुझे आम ला के दीजिए, मुझे तरह तरह के फल ला के दीजिए, फला के घर के बच्चे खा रहे हम तो नहीं खा रहे, हमको ला के दीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बेचारा के घर में रुपया नहीं है तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे, वो खिला नहीं पाएंगे। तो अब खा के क्या करनी चाहिए, उसको किसी खाल के अंदर जो दबा के रखने चाहिए या तो किसी बड़ा जगह तक उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे देखेंगे उसको तकलीफ महसूस होगी, वो तकलीफ पहुंचेंगे। तो मेरे प्यारे भाई इसका नाम दीन नहीं है, दीन तो नहीं का नाम है, खैरखाही का नाम है। तब इस तरीके से खैरखाही अपने अंदर पैदा कीजिए ताकि आप भी दीनदार बन जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दीन जो है ये दीन अल्लाह के नबी के अंदर 100% थे, तो आप और हमारे अंदर 100% आए हैं या नहीं, कितना तक बाकी है। आप और हम उनको क्या करनी चाहिए, अल्लाह के नबी की जिंदगी साथ जो है मिलाना चाहिए कि जो अल्लाह के नबी की जिंदगी के अंदर जो सिफात थे वो सिफात आपके अंदर होनी चाहिए।
बल्कि आप और हम जो है कौली दावत के ज़रिए से दीन इतना फैलता नहीं जितना फ़िअली दावत के ज़रिए से होता है। यहाँ पर हम जगह जगह में जाते हैं, कौल के ज़रिए से लोगों को दावत दिया करते हैं, लेकिन हुजूर के ज़माना में हुजूर ने अपनी फ़िअली दावत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ बैठ के जगह में तौलवात फरमाई, अपने अखलाक को पेश की है, जिसकी बुनियाद पर लोग आते थे और दीन इस्लाम के अंदर दुखूल होते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी के अंदर जैसे दीन थे, आप भी ऐसे दीनदार बन जाइए। एक बुढ़िया औरत थी जो कि अल्लाह के नबी के डर और खौफ से लोगों से सुना करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जादूगर है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं वो क्या होते हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलीमा पढ़ लेते। तो वो यही करता था कि अल्लाह के नबी से बौदा तक भागने के लिए जा रहा था, तो उसके पास एक बोझ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाई कि बुढ़िया वो बोझ मुझे दीजिए। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोझ लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके वो बोझ लेके उनको छोड़ने के लिए बहुत दूर तक चला गया। और वो बुढ़िया उसको कह रहा था कि आप भी भाग जाइए, क्योंकि इस शहर के अंदर ऐसा एक जादूगर आया है जो बनी हाशिम से है और नाम है मोहम्मद, और वो जो है जो बंदा उससे मुलाकात करता है वो इतना बड़ा जादूगर है कि वो दीन इस्लाम को कबूल कर लेता है। तो अल्लाह के नबी ने कोई बात नहीं बताए, अल्लाह के नबी ने खामोशी इख्तियार किया। जब उनको छोड़ा, उसके मकान तक पहुंच गए, वो अपनी जगह तक पहुंच गए, मंजिल तक पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे पूछा गया कि है तू कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीमाना अखलाक से जवाब दिया कि मैं ही वो हूँ जो जिसके खौफ से आप भाग रहे हैं, भागे के हैं, मैं ही मोहम्मद हूँ। तो बुढ़िया ने फौरन उससे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, अजीज साथियों, यही है दीन, यही है खैरखाही। आप और हम होते तो फौरन कह देते कि मैं ही हूँ मोहम्मद, लेकिन मेरे प्यारे भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नहीं किया। सबसे पहले बात को सुनी, तवाज़ु और इनकिसारी से सुना, फिर जाके अपने तवाज़ु को जाहिर की, फिर जाके अपने आप को जाहिर किया, जिसकी बुनियाद पर वो बुढ़िया भी दीन इस्लाम के अंदर दखूल हो गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, और आप अब हमारे अंदर 100% दीन आ जाए तो आप और हमारे फैली दावत के जरिए से आप और हमारे को देखते हुए हजार हजार लोग जो है दीन इस्लाम की तरफ आने लगेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दीन जो होता है, ये दीन जो है, इस दीन की मेहनत के लिए आपको कौल और फ़ैल दोनों एक बराबर होनी चाहिए। यानी आप जो बयान करनी चाहिए, जो बयान आप फरमाते हैं, वही बयान जो करते हैं वो करने वाले के अंदर वो आमाल 100% होनी चाहिए। तब जाके आपकी फैली दावत और कौली दावत जब बराबर हो जाएंगे, उसके जरिए से उम्मत के अंदर दीन फैलेंगे। अल्लाह ताला हमें हर एक साथी को जो है कौली से फैली दावत के अंदर अल्लाह ताला हमें लगा दे, और आप और हमको जो हम कौल से बातें करते हैं, इस कौल के अंदर 100% आमाल की तौफीक दे। और अल्लाह ताला आप और हमको इन चांद बातों को सुनने और सुनाने से ज्यादा आमाल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।